Hello everyone, welcome to Topper Vidyapeeth. In this video, we are going to discuss alternating current complete chapter with all derivation and all concepts. So let us start with the first topic, that is alternating current. Alternating current, as the name suggests, that current will vary, alter the current. So alternating current is defined as the current that changes its magnitude and polarity. Magnitude means value of current and polarity means the direction of current at regular intervals of time. It can be also defined as the electric current that rapidly changes or reverses its direction opposite to that of direct current. So alternating current is the current which changes its magnitude and direction with respect to time, while direct current is the current which does not change its direction with respect to time. As we can see in the diagram, ये जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया है ये साइन की वेव है. तो जनरली हम ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू I naught sin omega t. Now here I naught is the peak value of current. This is I naught. And omega is the angular frequency. Here we will have omega. So omega will be equal to angular frequency. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन वेव बनती है तो इसलिए हम जनरली ऑल्टरनेटिंग करंट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन. जबकि हमारे पास दूसरा करंट जो होता है डायरेक्ट करंट होता है जो कि वेरी नहीं करता अपने आप को. और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो मान लेते हैं 1 आवर पे भी टाइमिंग क्या है, करंट कितना है सेम, 2 आवर पे भी करंट सेम है, 3 आवर पे भी करंट सेम है. तो करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा. तो ये कौन सा करंट होगा, डायरेक्ट करंट होगा जो हमें कहाँ मिलता है, बैटरीज में मिलता है. जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट हमें कहाँ मिलता है, ट्रांसफार्मर से मिलता है. हम अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करते हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन ऑल्टरनेटिंग करंट. नाउ हमें ऑल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, डायरेक्ट करंट जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. तो लिमिटेशन इसकी यही थी कि पहली बात तो डायरेक्ट करंट को हम वेरी नहीं कर सकते थे. अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो भी हम उसको वेरी नहीं कर सकते. दूसरा, अगर इनकेस हमारे पास लेस करंट आ रहा है तो उसको इंक्रीज़ भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. तीसरा, अगर मुझे डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बाय द डायरेक्ट करंट. सो टू ओवरकम दीज लिमिटेशन निकोला टेस्ला डिस्कवर अ न्यू करंट दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, which is very easy to transmit over a long distance, which is very easy to convert from high to low and low to high. If we require high current, we can use high alternating current. If we require low alternating current, we can use low alternating current depending upon what we needed. So application is the same. Alternating current included in audio signal and radio signal. AC is used in our homes, in offices. We know that AC across long distance is very easy. It means the transmit of AC to a long distance is very easier compared to the DC. AC can be increased and decreased depends upon the transformer. AC also capable of powering electric motors. It is convert electrical energy into mechanical energy. It is used in refrigerator, dishwasher, etc. and other appliances. Now we come to understand what is meant by the average value of AC. Average means the value of करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल दैट इज 0 to t. इस 0 to 2t साइकिल में कितना करंट टोटल हमारे पास आ रहा है वो उसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू. अगर हम ग्राफ में देखें कि जितना करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही करंट लोअर डायरेक्शन में है, यानी दोनों करंट एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसिल. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की ओवर अ कंप्लीट साइकिल दैट इज 0 to t इज ऑलवेज 0. अगर हम इसे समझें इक्वेशन से तो अगर मुझे आई एवरेज निकालना है सो आई कैन राइट आई एवरेज इज इक्वल टू 0 to t आई डी टी अपॉन 0 to t डी टी. अब यहाँ पे 0 to t अगर हमें पता है इंटीग्रेशन करेंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू t, और आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसके इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t तक. आई नॉट क्योंकि कांस्टेंट है और p की वैल्यू है बाहर आ जाएगा, ये t भी हमारे पास नीचे रह जाएगा. साइन की इंटीग्रेशन आपको पता होगी वो होती है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी. अब हम पुट करेंगे लिमिट्स अपर और लोअर. तो हमारे पास यहाँ क्या बचने वाला है, आई नॉट बचने वाला ऊपर, नीचे बचने वाला है हमारे पास t. माइनस आन हम निकाल लेते हैं कॉमन. कॉस की लिमिट पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ऑफ 0. हमें पता है कॉस ऑफ 0 क्या होता है, कॉस ऑफ 0 इज़ 1. और ओमेगा टी की अगर हम बात करें दिस इज माइनस आई नॉट अपॉन टी. अगर मैं इसकी बात करूं तो जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई इंटू टी, राइट. 2 पाई अपॉन टी होती है, सॉरी 2 पाई अपॉन टी होती है. तो इफ आई राइट कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, सो टी इज कैंसल आउट विद टी. और कॉस 2 पाई की वैल्यू अगर हमें पता हो तो कॉस 2 पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है
1 होती है, तो ये भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस आई नॉट अपॉन टी 1 माइनस 1। सो 1 माइनस 1 इज 0, तो हम कह सकते हैं जो आई एवरेज होता है वो क्या होता है, 0। पर ओवर हाफ साइकिल ये 0 नहीं होता। हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं वैल्यू हम, तो अगर मुझे हाफ साइकिल निकालना है, आई एवरेज किसके लिए, अगर हाफ के लिए निकालना है तो हाफ के लिए क्या करूँगी मैं, 0 टू t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे कितना आएगा, 0 टू t/2, यहाँ पे आ जाएगा dt की इंटीग्रेशन सिंपली t होती है, लिमिट पुट करेंगे नीचे 0 से लेकर t/2 तक, ऊपर आई नॉट कॉन्स्टेंट आ जाएगा, साइन की होती है माइनस कॉस ओमेगा टी, जैसे अभी हमने की, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t/2, क्योंकि हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t/2 में लिमिट पुट करेंगे तो नीचे t आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, माइनस साइन भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, वी ऑलरेडी नो इट इज़ 1, हेयर वी हैव कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये रह गया कॉस पाई माइनस 1, बाहर हमारे पास कितना है, माइनस 2 आई नॉट अपॉन टी। अब कॉस पाई की वैल्यू बात करें तो वो कितनी होती है, दैट इज ऑल्सो -1, सो -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2, तो मिल जाएगा -2 आई नॉट अपॉन टी, इतना आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जाने वाली है 4 आई नॉट अपॉन टी। तो हमारे पास ये होती है एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास यहाँ पे आपको अलग अलग आई की वैल्यू गिवन हो तो आई एवरेज का फॉर्मूला ये भी होता है I1 प्लस I2 एंड सो ऑन IN अपॉन एन, अगर हमें अलग अलग वैल्यूज़ आई की दे रखी हैं तो। दूसरा, इफ़ ग्राफ इज़ गिवन टू यू, अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ, वो भी क्या होती है, सॉरी IT ग्राफ, वो भी हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ AC। अब RMS वैल्यू सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो भी सप्लाई आती है वो किसकी आती है, वो पीक वैल्यू की नहीं आती, वो RMS वैल्यू की आती है, इसलिए RMS वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। RMS वैल्यू क्या है, मान लो हमारे पास पहले जो था वो DC करंट था, तो हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी रिजल्ट निकाले थे, बिकॉज ऑफ DC निकाले थे। अब मेरे पास एक वायर थी, मैंने उसमें DC पास किया फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम T के लिए, और उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हो गई। अगर मैंने AC पास किया तो ऐसा हो नहीं रहा था, हीट जो है वो वेरी कर, कभी ज़्यादा आ रही थी कभी कम आ रही थी, तो करंट की वो वैल्यू जिसके लिए इसमें भी उतनी हीटिंग हो AC से जितनी ऑलरेडी DC में हो रही थी, उसी को हम बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। डेफिनेशन पे जाएंगे, द RMS वैल्यू ऑफ AC फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू द DC करंट और अ वोल्टेज दैट विल प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर और अ हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेजिस्टेंस ओवर वन साइकिल। सेम यही बात है कि DC जितनी हीटिंग प्रोड्यूस करेगी, अगर उतनी हीटिंग हमारे पास AC प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि AC वेरी कर रही है, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे RMS वैल्यू। बहुत इजी है, कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। तो अगर मैं फॉर DC लिखूँ, फॉर DC अगर मैं लिखूँ तो हीट का फॉर्मूला होगा I² RT, जहाँ पे हमारे पास R क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और T क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। अब हम बात करें फॉर AC, हमें करंट पता है किसके बराबर होता है, I0 साइन ओमेगा T। तो अगर मैं AC के लिए हीट लिखना चाहूँ तो दैट इज इक्वल टू I² RT। वैल्यू पुट करूँ तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आनी थी, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T R dt। अगर मैं स्मॉल हीट लिखूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी DH, क्योंकि टाइम हमने छोटा लिया है, तो DT भी किसके आगे लगेगा, टाइम के आगे। R भी कांस्टेंट है, तो R बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, तो हमें मिल जाएगा I0 स्क्वायर बाहर आ गया, R बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा T dt, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, DH। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल
heat produced over complete cycle that is 0 to t। तो इंटीग्रेट करेंगे इस तरफ भी डी एच आ जाएगा, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो कांस्टेंट निकालना, तो मेरा आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, आर बाहर आ गया कॉमन, आई एम लेफ्ट विद 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला खोलें तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, आई नॉट स्क्वायर, या इंटीग्रेशन में कभी भी स्क्वायर या क्यूब की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, वो सिर्फ लीनियर पावर की इंटीग्रेशन ही पॉसिबल होती है। यहाँ आ गया dt। अगर मैं इनको अलग अलग करूँ, आई नॉट स्क्वायर आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1 dt माइनस 0 to t कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यहाँ भी अपॉन 2 है, यहाँ dt है। तो बस इतना याद रखो बेटा, इसकी जो इंटीग्रेशन आने वाली है वो कितनी आने वाली है 0। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 0। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है t अपॉन 2। अब पुट करेंगे लिमिट 0 से लेकर t तक, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर है, अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर तो 0 है, तो यहाँ पे जो हीटिंग हमारे पास आएगी वो आएगी आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। अब हमने कहा हीट जो AC की थी वही हीट किसकी होनी चाहिए, DC की होनी चाहिए। तो अगर मैं इक्वेट करूँ यहाँ से, DC की हीट कितनी थी, दैट इज़ आई स्क्वायर आर टी, और AC कितनी आई है आई नॉट स्क्वायर आई टी अपॉन 2। कैपिटल टी लेते हैं यहाँ पे भी, t से t कैंसिल, r से r भी कैंसिल, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू रूट में आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 विच कैन बी रिटर्न एज आई नॉट अपॉन रूट 2। इसकी वैल्यू लगभग होती है 0.707 आई नॉट। सेम अगर मैं वोल्टेज के लिए निकालूँ तो जो VRMS होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.707 वी नोट। यहाँ पे वी नोट हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू है। डीसी के साथ अगर हम रेजिस्टेंस को अटैच करें तो कैसा बिहेवियर शो होता है, ओम्स लॉ, ये सब हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं AC सर्किट के साथ रेजिस्टेंस लगा दूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलती है। तो AC सर्किट की जो इनपुट होती है वो हमेशा, यहाँ पे VM लिखा है, आप वी नोट भी ले सकते हैं, इट विल बी सेम। और किसी बुक में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, दैट इज ऑल्सो सेम, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन द रिप्रेजेंटेशन ओनली, बाकी E और V की वैल्यू यहाँ पे सेम है। हमारे पास ये इनपुट हो गया, हमें बताना है कि आउटपुट कितना होगा अगर हमारे पास रेजिस्टेंस अटैच हो। तो डायग्राम में हमने यहाँ पे एक AC बना लिया, एक वायर बना ली, इसका रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, R दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर मुझे करंट निकालना हो तो आई कैन बी रिटन एज V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। वी नॉट अपॉन R क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जो मेरे पास आई की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास इसमें भी ओमेगा टी था, इसमें भी ओमेगा टी है, तो यहाँ पे कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इफ resistance is attached, a resistance is connected to AC circuit, to AC circuit। यहाँ पे एक फेजर डायग्राम आती है। फेजर डायग्राम क्या है, रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज की और करंट की। तो मैं फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बनेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये जो वैल्यू है उसको मैं मान लेती हूँ आई नॉट की वैल्यू है मेरे पास, और ये जो वैल्यू है इसको मान लेती हूँ मैं वी नॉट की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में फेज क्या है, सेम ओमेगा ही है। तो अगर आई का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और वी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, पर इन दोनों में फेज क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब इंडक्टर हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है EMI में। इंडक्टर क्या होता है,
सेल्फ इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए मैं वोल्टेज लिखूं या ईएमएफ का फॉर्मूला हमने किया है E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, याद होगा आपको। ये जो E है और V सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, V डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट, V की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, V की वैल्यू थी V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V हम लिख सकते हैं क्योंकि इनपुट हमारे पास AC है। यहाँ पे आ गया हमारे पास डी टी इज इक्वल टू एल, ये आ गया डी टी डी आई। एल को भी डिवाइड कर देते हैं, V नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई। क्योंकि हमें करंट निकालना है तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट क्या क्या आएगा हमारे पास, V नॉट कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, अंदर बचेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, यहाँ आ गया डी टी हमारे पास। लिमिट्स नहीं पुट करनी है हमें, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आ जाएगा डी आई, डी आई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आई इटसेल्फ। और अगर मैं इसका लिखूँ तो V नॉट बाहर आ गया, L बाहर आ गया। साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। नीचे हमारे पास एक हो जाते हैं यहाँ पे ओमेगा। जो हमने ऊपर एवरेज वैल्यू वाली डेरिवेशन की है वहाँ पे जो ओमेगा है डिनोमिनेटर का वो मिसिंग है, ओमेगा भी आएगा यहाँ पे नीचे, हर जगह ओमेगा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 पाई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाता, यहाँ पे 2 रह जाता, तो हमारे पास आंसर मिलता है 2 आई नॉट अपॉन पाई। ये आती है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या था V नॉट अपॉन एल, क्या आ गया कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट हमारे पास यहाँ पे है नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आई। कंबाइन करेंगे V नॉट ओमेगा एल, यहाँ पे आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब हमें जो पता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉस थीटा को लिखूँ यहाँ पे तो आई कैन राइट माइनस ऑफ कॉस, सॉरी साइन, कॉस को मैं साइन में लिखना है, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। यहाँ पे जगह V नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये चीज़ हमारे पास ब्रैकेट में आएगी। अब इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो मैं लिख सकती हूँ V नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल माइनस हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। सो V नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस। और यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर हमारे पास करंट जो है वो पोटेंशियल से कम होता है, उसका फेज डिफरेंस भी क्या करता है पाई बाय 2 से वेरी करता है। यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करती है, तो अगर हमारे पास कॉयल है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं इंडक्टेंस लिखते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है V नॉट अपॉन एक्स एल। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू आई। ये जो एक्स एल है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू डीसी के लिए, क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अगर हम इसकी फेजर डायग्राम देखें तो फेजर डायग्राम में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो वेरी कर रहा है पाई बाय 2 से, ये हमारे पास क्या है, ये करंट है और ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू करंट। या हम ये भी कह सकते हैं करंट डिक्रीज कर रहा है, यानी वोल्टेज क्या कर रही है डोमिनेट कर रही है यहाँ पे। तो वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है और करंट का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास जब वोल्टेज 90 डिग्री है तो करंट क्या है 0 है, क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस है पाई बाय 2 का। हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि जो करंट था वो पोटेंशियल से पाई बाय 2 कम था, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल की जो डेरिवेशन थी वो एक्सप्रेशन था वो V नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो करंट आया वो कितना आया V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे करंट जो है वो पोटेंशियल से कम है, यानी पोटेंशियल जो है वो करंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इफ इंडक्टर इज अटैच्ड। है हमारी एसी कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब हमारे पास कनेक्शन में सिर्फ कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर हमें पता है चार्ज स्टोर करता है। चार्ज कितना होता है, अगर हम फॉर्मूला लिखें कैपेसिटर का तो वो Q अपॉन V इक्वल टू C होता है। तो चार्ज अगर मैं लिखूँ तो किसके बराबर होगा C अपॉन C इंटू वी के। और AC के लिए जो वोल्टेज होती है वो होती है V नॉट साइन ओमेगा टी।
तो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालूँ, स्मॉल चार्ज निकालूँ, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अगर क्यू फिलहाल लिखे तो वो जाए क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। आई नो वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी इज कॉन्स्टेंट, वी नॉट इज कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी टी यहाँ पे जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो वो होती है कॉस ओमेगा टी। डी क्यू अपॉन डी टी बन गया हमारे पास आई, सी कॉन्स्टेंट, वी नॉट कॉन्स्टेंट, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी की दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगी तो एक ओमेगा क्या आ जाएगा आगे हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू सी कॉमन, ओमेगा कॉमन, वी नॉट, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें साइन 90 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे ओमेगा टी, तो वी कैन ऑल्सो राइट सी ओमेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का फॉर्म होता है कॉस इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ऐसे सो आई का फॉर्मूला हमारे पास आ गया सी ओमेगा। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आई कैन राइट वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है, यानी ये हमारे पास रिएक्टेंस है, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्योंकि डी सी के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 होती है तो कैपेसिटर जो है उसके लिए रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं डी सी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो डायरेक्ट करंट पास नहीं करता। अगर हम फेज डायग्राम की बात करें तो अगर हमारे पास वोल्टेज इधर है तो करंट जो है वो पाई बाय 2 से ज़्यादा होता है। अगर इसी का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास वोल्टेज कुछ ऐसी आएगी और करंट हमारा कुछ ऐसा आएगा। इसे हमने यहाँ पे प्लॉट करके, करंट हमारा कुछ ऐसा है, करंट है ये ज़्यादा है, और वोल्टेज किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से हो रही है। ये कौन सी डायग्राम है, फेजर डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसी कंटेनिंग आरएलसी इन सीरीज। तो हमारे पास तीनों हैं, हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया क्या इंपैक्ट होता है, अब तीनों कंबाइन करके पढ़ें। तो आरएलसी को अगर हम सीरीज में अरेंज कर दें तो हमारे पास आउटपुट कितनी होती है, वी इज इक्वल टू, वो हमें निकालनी है, नेट इम्पिडेंस निकालना है। तो हमें आर एल सी दे रखा है और इनपुट हमें पता है किसके बराबर है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। मुझे पता है कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस जो करंट और पोटेंशियल उनमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं होता, तो कुछ ऐसा आता है। इन केस ऑफ अगर हम डायग्राम बनाए कुछ ऐसी, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो करंट और पोटेंशियल में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता, तो उनमें जो लाइन है वो स्ट्रेट आती है। इन केस ऑफ अगर बात करें इंडक्टर, तो इंडक्टर केस में जो पोटेंशियल है वो लीड करता है, तो वी एल का ग्राफ ऊपर आएगा। यहाँ तक हम मान लेते हैं ये वी एल का ग्राफ इतना आया। इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमारे पास करंट पोटेंशियल जो है वो लैग करता है, तो उसी केस में हमारे पास ग्राफ कितना आ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ऊपर की तरफ है, एक चीज़ नीचे की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ये दोनों का रिजल्टेंट होगा जिसको हम बोलेंगे वी एल माइनस वी सी। इसी के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी किसके बराबर जाएगी, वी एल माइनस वी सी। और वी एल किसके बराबर होगा, आई एक्स एल के, और वी सी किसके बराबर होगा, आई एक्स सी के। पीछे हमने पढ़ा है वही चीज़। और वी आर जो है वो आई आर के बराबर होता है, ये आपको थ्योरी में लिखना है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो इसका रिजल्टेंट मुझे यहाँ मिलेगा, जो कि मैं आई जेड लिखूँगी। यहाँ पे जेड बोलते हैं इम्पिडेंस को, और ये जो हमारे पास एंगल होता है इसको बोलते हैं फेज एंगल, फेज एंगल। और इसी ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल। एग्जाम में पूछी जाती है इम्पिडेंस ट्रायंगल। तो सबको फेज, सारे जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस से कैपेसिटर से, अगर उनको फेज में मैं अरेंज कर दूं और एक ट्रायंगल टाइप बना दूं तो इसको बोलते हैं हमारे पास इम्पिडेंस ट्रायंगल, जो कि रिप्रेजेंट करता है नेट इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अगर हम स्टार्ट करें इसकी डेरिवेशन तो बहुत ईजी ट्रायंगल्स देखना है हमें। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आई कैन राइट दैट, बस ये ट्रायंगल को सॉल्व करना है। एक बार डायग्राम बना दिया आपने और ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो ए बी में अगर मैं लगाऊँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर,
दैट विल बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए हमारे पास क्योंकि वी था तो वी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास कितना था, वी एल माइनस वी सी था, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने, और वो हमारे पास आएगा वी जेड का स्क्वायर। अब वी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, आई आर का स्क्वायर। वी एल की जो वैल्यू थी वो एक्स एल इंटू आई थी, पता है हमें, ये एक्स सी इंटू आई का स्क्वायर आ गया, और वहाँ पे हम जेड मान लेते हैं, जेड इंटू आई का स्क्वायर आ गया, क्योंकि सीरीज़ में है और हमें पता है सीरीज़ में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो आई स्क्वायर हर जगह कॉमन है, तो आई स्क्वायर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, सो आई लेफ्ट विद आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इम्पिडेंस आती है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल लिखना हो तो वी आई अपॉन जेड आ जाएगा। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सेम यही रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, एक सेकेंड, क्या आ जाएगा हमारे पास, आई अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इफ़ एल इज़ ज़ीरो, यानी हमारे पास इंडक्टर अटैच ही नहीं है, तब पोटेंशियल क्या बन जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर हमारे पास सी ज़ीरो होगा तब कितना बन जाएगा, आई अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। यहाँ पे एक और पूछी जाती है चीज़ हमारे पास, फेज एंगल, जिसको हम बोलते हैं टैन फाई। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे टैन थीटा निकालना, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, वी एल माइनस वी सी, और बेस कितना था, वी आर। अगर मैं वी एल को लिखूँ तो आई कैन राइट आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी अपॉन आई आर। आई से आई कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये किसके बराबर आ गया, टैन फाई के। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ होती है, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, और वो होती है कॉस फाई। कॉस लिखेंगे तो वो कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू आती है, कई बार एग्जाम में पूछ दी जाती है। फेज एंगल भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद ही आता है, देखो रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बराबर हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, वह सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस ऑफ द सर्किट। So RLC circuit resonance is the condition when the opposing reactive effect of inductor and capacitor cancel out each other and resulting the purely resistive। यानी हमारे पास जो सर्किट बचता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव बचता है। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे लिखें एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें ऐसे, एक्स एल इक्वल टू हमारे पास एक्स सी आ गया, तो इसकी वैल्यू हमें पता है ओमेगा एल होती है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1 अपॉन रूट में एल सी। तो ये हमारे पास आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। सो अगर एफ निकालना तो दिस इज़ 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ये होती है ऑसिलेशन ऑफ सर्किट, आरएलसी सर्किट। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता है, जो मैक्सिमम है जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा, और रेजिस्टेंस अगर अकेला एक रेजिस्टेंस ही पैरामीटर रहेगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो ज़्यादा होगा। उसके अगर हम इस तरफ बात करें तो दोनों तरफ करंट की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। यानी हमारे पास अगर एक्स एल और एक्स सी प्रेजेंट हैं तो करंट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। लेकिन जैसे ही एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू सेम हो जाती है और दूसरे के इफेक्ट को कम कर लेते हैं तो हमारी करंट की वैल्यू बहुत शार्पली क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो शार्पनेस भी मिलती है हमें, शार्पनेस ऑफ कर्व कब मिलती है, इन केस ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन है एवरेज पावर ऑफ आरएलसी सर्किट। बहुत इजी डेरिवेशन है ये, निकालने के लिए हमें एवरेज का फॉर्मूला होता है वी इंटू वाई, पावर का फॉर्मूला वी इंटू वाई। एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन करके, तो 0 टू टी वी आई, 0 टू टी डी टी, यहाँ पे डी टी बचेगा हमारे पास। अब वी की वैल्यू में पता है कितनी होती है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ए सी की फॉर्म में, और आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है। क्यों फाई होती है, क्योंकि हमें पता है करंट क्या करता है, वेरी करता है। यहाँ पुट करेंगे तो पी का फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट 0 से लेकर
टी तक वी नॉट साइन ओमेगा टी, आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, नीचे हमें पता है 0 to t इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हमारे पास t आने वाली है, पता है हमें, तो हम एक t रख लेते हैं नीचे और इसको हम निकालेंगे कॉमन, समझिएगा 1/t आ गया बाहर। अब यहाँ पे मिलेगा 0 से लेकर t तक। देखो वी नॉट जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि p की वैल्यू है, आई नॉट p क्या है, कांस्टेंट है। अंदर हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी और एक मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 और यहाँ मिल जाएगा हमें डी टी। अगर हम इस टर्म में देखें तो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं इस टर्म को तो आई कैन राइट साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। और हमारे पास पहले वाली टर्म कौन सी है, साइन ओमेगा टी है। बाहर हमारे पास कांस्टेंट था वी नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक और यहाँ पे हमारे पास है डी टी। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट, यहाँ आ गया टी हमारे पास और हम लिख सकते हैं 0 से लेकर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस 0 से लेकर टी तक साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, डी टी इधर भी है, डी टी हमें यहाँ भी लिखना है। अब साइन स्क्वायर को हमने पहले भी सॉल्व किया था, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, लिमिट 0 से लेकर टी तक कॉस 5 प्लस अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5 डी टी। अब यहाँ पे साइन देखो ऑड फंक्शन है और कॉस हमारे पास इवन फंक्शन होता है। ऑड और इवन का प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होती है, 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आ जाएंगी, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, लिमिट 0 to t, 2 में कॉन्स्टेंट निकाल लूँ अगर तो मुझे मिलेगा cos 5 मिल जाएगा यहाँ पे 1 to cos 5 माइनस 0 to t, यहाँ पे मिलेगा cos 2 ओमेगा अपॉन 2। अब ये cos 2 ओमेगा भी इवन फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन भी 0 होने वाली है, हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन मिलेगी। cos 5 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, वी नॉट कॉमन, ई नॉट आई नॉट कॉमन, 2 कॉमन, t कॉमन। cos 5 की इंटीग्रेशन, cos 5 तो बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट इसकी t है, t से t कट गया तो पावर का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें यहाँ से, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। इसको मैसेज लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, यहाँ पे cos 5 भी है, वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2, क्योंकि √2 2 ही बन जाएंगे cos 5। यहाँ पे cos 5 को बोलते हैं पावर फैक्टर। और जहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू यानी अगर 5 की वैल्यू 90 है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, p की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ऐसे सर्किट जहाँ पे फेज एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, वहाँ पे पावर क्या होगी, 0 होगी। और वैसे सर्किट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वैसे सर्किट में जो करंट है उसको बोलेंगे वॉटलेस करंट, बिकॉज उस सर्किट में पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 0, जहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास है, दैट इज़ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का होता है म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, दैट इज whenever amount of magnetic flux linked with one coil changes, EMF is produced in the other coil। अब हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है और हमने यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स की होती है प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो इन वाइंडिंग्स के बिहाफ पे हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप नाम से पता लग रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये लो को हाई में कन्वर्ट करेगा, यानी लो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज में। हमारे घरों के जो भी हमने अपने आसपास सराउंडिंग में ट्रांसफार्मर दे रखे हैं वो सारे स्टेप अप हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि पावर ट्रांसमिशन में जो भी वोल्टेज का लॉस हुआ है उसको ओवरकम करते हैं वो, तो जो भी ट्रांसफार्मर हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेज, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं उसमें टर्म्स ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी वाइंडिंग्स में टर्म्स क्या होती हैं, कम होती हैं। जैसे हम डायग्राम दे सकते हैं, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्योंकि ज़्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग से, तो ये कौन सा है, स्टेप
अप है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग्स यहाँ पे ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे कम है, तो ये कौन सा स्टेप डाउन। इसका काम है कि ये हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करे, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे, हाई टू लो। ये कहाँ यूज़ होता है, अडेप्टर्स में, जो चार्ज में अडेप्टर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है और हमारे चार्ज को या हमारे फ़ोन को 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं चाहिए होती। तो वैसे जहाँ पे हमें कम सप्लाई चाहिए होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो है क्योंकि हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल को, वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं उसमें टर्म कम होती है और प्राइमरी वाइंडिंग्स में टर्न्स ज़्यादा होती हैं। अगर हम लिखें जो हमारी पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। V2 जो पोटेंशियल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स N2 के। अगर मैं इनकी रेशियो लिखूँ V1 अपॉन V2 तो वो बराबर होता है N1 अपॉन N2 के। अगर मैं इसको ऑपोजिट करके लिखूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने E से लिखा हुआ है, हम इसको V भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। इसको हम लिखते हैं K के बराबर, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है, यानी सेकेंडरी में वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा है, तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनता है। अगर वहीं सेकेंडरी की वाइंडिंग पहले से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है। अगर नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। ये याद रखना, करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। N1 इज इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/I1। तो अगर मुझे I1 अपॉन I2 लिखना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी N2 अपॉन N1। तो करंट जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के या फिर नंबर ऑफ टर्न्स के। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें तो वो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर होती है VP इंटू IP, सॉरी VS इंटू IS सेकेंडरी में बात करें, या V2 इंटू I2, और इनपुट होती है IP इंटू VP। तो इसकी जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ करते हैं, पहला एप्लीकेशन है पावर ट्रांसमिशन में। अगर हमें पावर को बहुत लॉन्ग रेंज में ट्रांसमिट करना है तो हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। सेकंड है हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं जैसे कि चार्जर, पावर अडेप्टर, इन सब में हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रेलवेज में यूज़ किया जाता है। ट्रेन्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, ट्रैम, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज पावर फ्रॉम ओवरहेड सूटेबल लेवल टू ट्रेन ऑपरेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कन्वर्ट करना होता है जब भी हमें AC टू DC में, तो हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। लाइटनिंग सिस्टम में जो कि हमारे पास हैलोजन LED लाइटिंग होती है, इन सब में भी हम स्मार्टफोन में क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया ये था हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक, और इससे हमारा जो चैप्टर है AC ऑल्टरनेटिव करंट वो फिनिश होता है। इसका लास्ट एक टॉपिक था जनरेटर का, वो अब सिलेबस में है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ इतने टॉपिक हैं और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं।